camera on and keep on off so nobody sees what you're doing. But you see, we are talking on the philosophy of personalism, not impersonalist philosophy. तो पर्सनलिज्म पर्सन दिखने चाहिए ना, इम्पर्सनलिस्ट क्या नाम सिर्फ दिखाई दे देगा तो उसमें से मजा नहीं आएगा ना. Yeah, true. No, I like to keep my camera off. No, don't do that. सविता भाभी जी, सविता जी कैसे हो? हरे कृष्णा. आपको कोटि कोटि हमारा दंडवत प्रणाम. आज दंडवत. आज हम तीन लोगों के तीन भाइयों के सुने. एक कल रमेश ने किया. हाँ. हेलो. हाँ बोलो बोलो ना, सुन रहे हैं. मैं अनिल का सुना अभी आपका. अच्छा. तो उसमें से we got about 9 people, yeah, who responded till now. So okay, very well done, many of you. Thank you very much for participating. Is one way of learning also. तो ज्योति बता सकती है कि जब सिखाते हैं तो तभी जब होमवर्क भी होता है तो होमवर्क भी करते हैं. तो सिखाना और होमवर्क करने में क्या होता है, you can even develop further skills, no? You can develop further knowledge because पढ़ने से और घर में पढ़ाई करने से you shape up your knowledge. तो anyway, it was 9 and all have made a good attempt. सवाल कुछ कुछ ऐसे किए गए थे थोड़े जटिल, बोलते हैं ना, जैसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल एक दो थे जानबूझ के किए गए थे ताकि यू गेट टू रीड, बिकॉज उसमें बताया गया था कि जवाब कहाँ है, वो भी बताया हुआ था, आपको सिर्फ वो रीड करना था. तो मे बी कभी कभी होता है ना कि लास्ट मिनट में जवाब देना, जल्दी जल्दी में करना, तो थोड़ी गलती हो गई. तो आई वुड लाइक टू शेयर एटलीस्ट दोस 2 or 3 questions so that you get cleared about the answers. You know, they were purposely made such a way. I understand it. Only after 9, I think only there are 2 people who got all right, 100 out of 100. बाकी कुछ कुछ लोगों ने थोड़ी छोटी 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 गलतियां की थी. तो वो छोटी गलतियां, if you don't mind, before we start, we will just revise them. आप ही से जवाब मांगते हैं. I will open that page and let's see if we can come up with their answers. Okay, can you see that page, the quiz page? You can chat with me. You can just write on the chat, yes, I can see. तो उसमें से पता चलेगा. एक जन भी बोल दिए ना? Yes, we can see. Okay. So the first question was simple. I mean, then you have to write your name. और second question में पूछा गया था, what are the 5 truths or principal subject matters of Bhagavad Gita? वो तो जो हम अभी पिछले ऐसे 5 सेशंस कर रहे थे, उस 5 सेशंस में हमने ये सब इनके बारे में पढ़ा था, जो द 5 बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज विच भगवद गीता इज प्रोवाइडिंग अस, ना, जो हमें भगवद गीता दे रही है, वो 5 प्रकार के जो ज्ञान है वो हमने देखे थे, राइट. तो वही सवाल है, सिर्फ उस क्रम के बारे में था, वो क्रम कौन सा होने चाहिए, वो सही क्रम से लिखना चाहिए था, 1 से 5 जो क्रम थे. तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं. समझो कि ईश्वर है, तो ईश्वर इस 5 ग्रुप में है कि नहीं है, क्योंकि एक लास्ट वाला ग्रुप है, लाइन है, जो नन ऑफ द 5 सब्जेक्ट मैटर्स. तो ईश्वर इज फॉलोइंग इन द लाइन ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट मैटर्स और नो. And if it is no, then answer should be none. And if it is yes, then which position? Yes. It is yes. First. It's the first position. Okay, so we will Yes. write. I think it's not letting me work because it is copy. It's not letting me work. Okay, anyway, so this is just a copy. I cannot work on it now because this is a screen sharing, so I cannot work on it. One second. I will try to get it the other way around. Just see if I can get it the other way around.
Just a second. I'll just stop this. Okay, it's not letting me do it. Anyway, we will just go through that answer. Ishwar is okay. So Ishwar was on the first position, and Prabhuji, excuse me. yeah, Yeah, my question is that we have to answer in the serial wise, like in the yes, Bhagavad Gita introduction, yeah, it's written. yeah. Ah, So okay, it was written in the okay. order of 1 to 5. ऊपर से लिखा हुआ Yeah, था ना? okay. Yeah, right. So here there was some mistake. There were people, they gave the right answers, but the order was not correct. Serial wise, okay. Okay, serial wise. So Yeah. Punarjanma, for example, reincarnation, whether it is a topic of the first 5 subject matters or no? No. No. और भी participants से please I expect some answers. आप भी जवाब दीजिए. It's for everybody. तो जो हमने जो 5 सब्जेक्ट्स किए थे उसमें पुनर्जन्म reincarnation नहीं आता है. पहले ईश्वर आता है. That's correct. Then देवी देवता है टॉपिक कि नहीं? हेलो? नहीं. Right. देवी देवता नहीं है. प्रकृति? Yes. Okay. What is the position of the prakriti? It comes in which krama or which ranking? So first was Third. Ishvara. Sorry? Third. Third, right. That would be the third position. And then we have Kal, which is coming in the 5 categories. Fourth. Kal is fourth, right? Then Gyan Yoga or different type of yogas. Is it coming within those 5 subjects? No. Then we have the Karma, the activities. Fifth. And the Jiva finally? Second. Exactly. Second. ये अभी सही हुआ, right? पहले किस लोगों ने ऐसे jumble up कर दिया था, थोड़ा mixing हो गई थी. The answers were right, but they were jumbled up, like in the order they were not proper. Okay. और यहाँ भी जो है Lord Krishna has innumerable energies, but how many primary energy does he possess? 3. किसने ये जवाब दिया ये? Who's the one who gave the answer? Is Krishna? Krishna Ima. Very nice. Thank you. Krishna, very nice. Who is Krishna Nima? Can we just see her? Well, Krishna Naima, please can you on your camera? Anyway, she's feeling a bit shy. Anyway, okay. We will continue later. We will when we open up all the cameras, maybe. Okay. Okay. Then we have the next question. The only Purusha enjoy in the entire creation. ये सबको सही मिला जवाब. Okay. The options were the males of every species of life, humans, animals, etc. The supreme creator, every living entity, or the material nature. So the only Supreme Creator. The Supreme Creator, right answer. Now identify each of the items to the corresponding energies of Lord Krishna. यहाँ पे काफी लोगों का गलती हुआ, बहुत लोगों की गलतियां यहीं पे हो रही थी. So हमने जब हम पढ़े थे कि there were 3 potencies, जैसे पहले भी बताया 3 potency energies of Lord, internal, external and marginal. ठीक है. तो अभी श्रीमती राधा रानी फॉर एग्जाम्पल, ये तो सब लोगों ने सही बताया कि ये इंटरनल पोटेंसी है ऑफ कृष्णा. नाउ एनिमल्स, यहाँ पे किस लोगों ने गलती की? What do you think animals should be? Which energy should belong to? Marginal. There was some who wrote external potency, but it's marginal potency because it's jiva. At the end of the day, वो body किसी प्रकार की भी हो चल सकती है, यानी it could be animal, it could be plants, but as long as it's having a living soul and living entity inside, so it becomes a marginal potency. Human beings? Marginal potency. Very good. And the trees? Marginal. योगिता जी थोड़ा दूसरों को भी मौका दीजिए. जी. I know you are very enthusiastic and you know many things. तो थोड़ा दूसरों को भी मौका देते हैं. Trees is also marginal. And then Yogamaya? Internal. Haribol? Yogamaya?
internal. Internal. हाँ, ये किसने जवाब? External. Who gave that answer? आपका नाम क्या है? हाँ, प्रभु जी सीमा पंजाबी. हाँ, Ima. Very nice. Nice to see you, and thank you very much. Yeah, that's right answer. Yogamaya is the internal potency of the Lord. अच्छा, अभी water, फिर प्रकृति. Prakriti, which means the external potency, right? Prakriti is the external potency. Huh? So Yeah. this way we'll go according, like mind, for example. Mind becomes which potency of the Lord? कौन सी उनकी Should be ऊर्जा? external. Mind is external. I think so. Okay. Yeah, external. Sure. Yeah, mine should be external. Yes, it's external. That's correct. And Maya? External. Sorry? Internal. External. External. That's correct. Okay. Maya is external. Senses? External also. External. That's correct. Yeah. Senses are accurate. Birds? Marginal. Marginal. Very good. So those who have soul, because birds also have soul, so they become marginal. Earth? External. External. And Shri Balaram? Internal. Yes, very good. Very good. See, now everything it fits in its place. But here there were some mistakes were done by some participants, and that's why they got few incorrect answers. And rest were right. We can also go rapidly through it. The material nature, Prakriti, works exclusively under the direction of, you have the jivas by your own will, the Supreme Lord, or the demigods. The Supreme Lord. The Supreme Lord. Very good. Krishna does not interfere with the dealings of Maya with the jiva because first, Maya is only doing her duty just as the jailer deals with the prisoners. The Lord does not care for the jivas, or Maya is more powerful than the Lord. First one. First one, correct? Sure? Yeah. Okay, good. Yeah. Then Mahamaya's purpose of punishing the jiva is because it enjoys giving us pain to rectify our criminal desire and make us Krishna conscious, to make us nice humans and serve the society, to make us stronger against future disasters. Criminal desire. Second one. Second one, Yeah. rectify our criminal desires and make us Krishna conscious. That's right. Yeah. That's right. Because Maya is Krishna's, as we said, Dasi, she's a servant. She's serving Krishna. And the purpose of, at times, punishing us as something is because we should correct our criminal desire. Our criminal desire was that we want to enjoy for our own selves. हम खुद अपना आनंद भोगना चाहते थे और कृष्णा के बगैर, तो वो हमें करेक्ट कर रही है, हमें सीधे रास्ते पे ले आ रही है ताकि हम फिर कृष्णा भावना अमृत में आ जाए. And happiness in the material world is first option, real and permanent, just an illusion, or temporary. Second one. Is the Yes, second one. Yeah. So it is just an illusion. Okay. Okay. So we got it correct. Everything right. And is understood now. Everything is fine. Yes. Yeah. Yes. So okay. So now we don't have to repeat. Now you understood the topic about material energy. हाँ, like last time you people some कोई बोल रहे थे कि थोड़ी complicated है, थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन अभी इस जवाबों से पता चलता है कि यानी अभी आप सब समझ गए हो, जो real matter, concerning matter is understood by you all. Prabhuji, I have a question, please. Yeah, In that marginal, जी इसी में से marginal energy और external energy में कहाँ पे trees को हमने marginal energy कहा है? trees को marginal, yeah, because marginal. तो फिर water को external energy क्यों कहा है? उसमें आत्मा नहीं है ना? Okay. Element, right? Okay. क्योंकि जो elements हैं, जो earth, water, fire, air and ether, Right. Yeah. are the external potency. उसमें
हाँ वो आई जब हैड तक कंफ्यूजन दैट, हाँ ये गलत किया था मैंने। जी, ओके, थैंक यू। so now welcome also to those who have now joined bit late, and we will now start. We were just revising our previous questions of last week, and now we'll go back to the topic of today. So today is very interesting topic. It's going to be the fourth topic of the 5 subjects. Okay, the fourth topic is Kal, this time. Time is very, like, we, how many times we say Kal balwan, समय बलवान होता है, you know, nobody can, समय से कोई पंगा नहीं मिला सकता, नहीं ले सकता पंगा, नहीं, तो कुछ भी करो समय हमें जीत ही लेगा ना। वैसे प्रकृति भी बलिशान है, बलवारी है, लेकिन वक्त भी is very strong. Okay, so we will just go through this topic of today. I will share the okay, so here you can see, we can see Kal, the time. So the title is Kal, the time, measuring the eternity. अनंत को नापना। अभी आप बस सोचिए, अनंत है तो उसको कैसे नापा जाएगा? अगर अनंत है तो उसको मेजरमेंट तो कर ही नहीं सकते उसकी ना। तो अनंत को नापने के लिए और एक अनंत चाहिए, अनंत वस्तु चाहिए, अनंत तत्व चाहिए। अनंत को अनंत ही समझ पाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो फॉर दैट, जैसे प्रकृति है वो भी, दिस होल क्रिएशन इज अनंत, जो भी सृष्टि रची हुई है भगवान की, जो वो सब अनंत है। तो इस अनंत को नापने के लिए एक अनंत वस्तु ही चाहिए, वो समय ही हो सकता है। तो ये समय है क्या, अभी उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। हमने पहले बताया था कि ये जो पहले जैसे भगवान आते हैं, भगवान से जीव होते हैं, फिर प्रकृति होती है। तो कभी कभी इंसानों में ऐसे जो बद इंसान होते हैं, बद आत्माएं होती हैं, जो कंडीशन सोल्स होते हैं, उस कंडीशन सोल्स को अंदर में एक इच्छा जागती है। क्या इच्छा होती है? कि मैं भी भोग कर सकूं, मैं भी आनंद ले पाऊं, लेकिन कृष्णा के बगैर। क्योंकि कृष्णा उनके लिए, क्योंकि अगर हम स्वर्ग, हम जैसे कृष्ण लोक में रहते हैं, जो वृंदावन, जैसे वृंदावन गोलोक में होते थे, तो उस समय सब कृष्ण की बातें चलती थी। जो भी होते कृष्ण के आनंद के लिए होती थी, जो भी कार्य होता था, जो भी एक्टिविटीज होती थी, गतिविधियां होती थी, वो सब कृष्ण के आनंद के लिए होती थी। तो कभी कभी इसे मन में जागृत हो सकता है ना, जैसे कोई कर्मचारी होता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, काश मैं भी ये सेठ के जैसे गाड़ी चला सकूं, काश मैं ये भी सेठ के जैसे बंगलों में रह सकूं, उसमें ऐसे उमंग आ सकती है। ऐसे नहीं है कि भले कितना भी पुराना वर्कर हो, कितना भी पुराना कर्मचारी हो आपके फैक्ट्री का ना, अच्छे में अच्छा सेक्रेटरी हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है, कभी कभी बोले पार्टनर सोच सकता है कि इस पार्टनर को ज्यादा हिस्सा क्यों है, मुझे कम क्यों है, तो शायद मैं अपना व्यापार क्यों नहीं खोल लूँ। तो ये जागृत हो सकती है भावना। ये जागृत में क्या होता है कि सोचने लगते हैं कि मैं भी भगवान तो बन के तो देखूं एक दिन। तो जब ये इच्छा जागृत होती है तो भगवान क्या करते हैं? द सुप्रीम लॉर्ड एज महाविष्णु impregnates the material nature through his glance. जब ये उसको जागृत होती है तो बोलते हैं इसके लिए अभी कुछ सुविधा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही नगरी में 2 राजा नहीं हो सकते। नहीं, एक नगरी यानी गोलोक वृंदावन में, वहां के राजा कौन है? गोविंद जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, मदन मोहन है, अब जो भी बोलो वही भगवान है, वहां के वही राजा है, परम राजा। तो वो बोलेंगे हमारे यहाँ तो 2 राजा तो नहीं बन सकते। तो बेटा तेरे को अगर आनंद लेना है, राजा बनना है कहाँ का, तो तुम अलग जगह पर चले जाओ, मैं आपके लिए वो सुविधा बना के देता हूँ, वो आपके लिए अरेंजमेंट करके देता हूँ। तो वो अरेंजमेंट भगवान करके रखते हैं। तो अभी उसके लिए महामाया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सृष्टि रचनी है, विच इज द एलिमेंट्स, जो उसमें तत्व हैं, वो तत्व सब भौतिक तत्व हैं। जो हम गोलोक वृंदावन में जो मिलते हैं वो आध्यात्मिक तत्व हैं सब वहां पे। तो आध्यात्मिक तत्व सिर्फ भगवान की सेवा में लगते हैं। जो भी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भगवान की सेवा ही में होते हैं। जैसे अभी घर, आप घर में सपोज मंदिर है आपके यहाँ घर के अंदर, तो घर के मंदिर के लिए भगवान के लिए अलग थाली होती है, कप होते हैं, चमचे होते हैं, आरती की थाली होती है। तो वो किसके उपयोग में लगाई जाती है? भगवान के उपयोग में लगाई जाती है ना। वो खुद उस थाली से आप तो नहीं खाएंगे ना, तो भगवान की थाली भगवान के लिए। तो भगवान का शंख है, भगवान शंख से नहाते हैं, तो हम उस शंख से हम नहीं नहा सकते ना।
तो या तो उस ग्लास से पानी नहीं पी सकते। तो वो जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं वो भगवान के कार्य के लिए होते हैं, भगवान की सेवा के लिए होती हैं। तो आध्यात्मिक दुनिया में, गोलोक में जो भी वस्तु हो भगवान के लिए। तो हम जो हैं अगर भगवान बनना चाहते हैं तो वहां की वस्तु हम नहीं वापर सकते, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो भगवान भौतिक वस्तुएं हमारे लिए तैयार करते हैं। तो भौतिक वस्तुएं तैयार करने के लिए पहले हमें भौतिक संसार में जाने के लिए उसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, हाँ? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पहले तो था नहीं, वो बनाया जाता है। वो पहले बना हुआ नहीं था तो अभी उसको बनाना पड़ता है। भगवान फिर कैसे करते हैं? वो महामाया यानी प्रकृति, यानी पहले पहले जैसे भगवान था, फिर जीव अभी प्रकृति का उपयोग करने वाले हैं। क्योंकि जीव जब तक गोलोक में है तो उसका उपयोग क्या होता है? वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वही उसका उपयोग होता है। हाँ, किसी प्रकार की सेवा हो या रिश्ता हो, उस रिश्ते को निभाते रहता है, राइट। तो अभी वो प्रकृति, अभी वो जीव जब आनंद भोगना चाहता है तो उसको भौतिक सागर, भौतिक संसार में भेजा जाएगा। हाँ, वहां वो कुछ भी कर सकता है, जो कर सकता है वो मर्जी का मालिक हो जाता है, अपने इच्छा के अनुसार जो भी चाहता है वो कर सकता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? उसको महामाया की जरूरत पड़ती है। तो जीव जैसे हैं उसको ट्रांसफर करने पड़ते हैं ना। जैसे आपको बंबई से दिल्ली जाना पड़ता है तो ऐसे सोचते सोचते तो दिल्ली नहीं पहुंचोगे ना, यंत्र चाहिए होता है, कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो ये जो जीव है, उस जीव को अगर मटेरियल यानी भौतिक संसार तक पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने के लिए एक वाहन चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और वो जाके उस वाहन में बिठाए जाएंगे और वो वाहन उसको पहुंचाएगी। आप जैसे किसको स्टेशन में छोड़ने जाते हो तो वो आप स्टेशन में जाओगे, फिर वहां पे वाहन पे बिठाओगे तो, या एयरपोर्ट में जाओगे तो वो जाके आपको डेस्टिनेशन में या गति तक पहुंचा देगा, राइट। यहाँ तक सही है ना? एवरीथिंग ओके? ऐसे नहीं बाद में कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे। जहां पे आपको शंका हो तो आप रोक सकते हो, राइट। तो ठीक है, तो ये वो यहाँ तक की बात। हाँ, तो अभी भगवान क्या करते हैं? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। Yes. So abhi what he does is impregnates the material nature is feminine. Okay. So she is feminine. तो उसको अभी रूप देने के लिए गर्भ चाहिए होता है। जब जैसे जीव इंसान बन के जब ये आता है तो पहले तो आत्मा के रूप में होता है। तो वो आत्मा को एक शरीर चाहिए, राइट। वो शरीर बिना वो सृष्टि में, इस संसार में, भौतिक संसार में नहीं रह पाएगा, सही है ना। तो उसको एक शरीर चाहिए होता है। तो शरीर कहाँ से आता है? माँ से आता है, राइट। एक जीवित इंसान से आता है। एक मरे हुए यानी आप ऐसे जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, उसको मिलाओगे तो ऐसे शरीर तो नहीं बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए कोई जीवित शक्ति चाहिए। तो वो जीवित शक्ति है महामाया। तो एक समझो कि माँ है हमारी वो। तो वो सब जो जीव हैं उसके गर्भ में ट्रांसफर की जाते हैं। और उसका गर्भ में ट्रांसफर कैसा होता है? वो ट्रांसफर होता है थ्रू हिज विजन। अभी भगवान में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा क्या है कि आप जिस भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हो। हमारे अंग अलग अलग हैं, तो हमारे अलग अलग अंग जो है वो एक ही कार्य करते हैं। जो हाथ होते हैं वो हाथ का काम करते हैं, जो पैर होते हैं वो पैरों का काम करते हैं, राइट। लेकिन जो भगवान के जो अंग होते हैं शरीर के, वो कोई भी कार्य कोई भी कार्य कर सकते किसी अंग से। हाँ? तो वो जब भी अपनी नजर से उसको गर्भवती कर देते हैं महामाया को। तो उस नजर जो है ना, उसकी जो ग्लैंस है भगवान की, वो ग्लैंस जो है, it is, let's say you can compare it to the semen, let's say the human semen, जो धातु होता है, जो ह्यूमन का जो धातु होता है उससे कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन वो है धार, एक नजर, एक उसकी, तो वो है समय। वो समय जो है वो धार जो धातु है, तो वो धातु जो ट्रांसफर होता है वो सीधा जाके उसको महामाया को गर्भवती कर देता है। अभी वो सोचोगे कि भगवान अगर स्पिरिचुअल है, भगवान आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक और जो महामाया है वो प्रकृति है, तो आध्यात्मिक और प्रकृति का कैसे मेल हो सकता है? ये भी सवाल जायज है, इस वैलिड क्वेश्चन, कि जो प्रकृति है उसका ऐसे मिलन। तो भगवान क्या करते हैं, उस समय जो है ना, जो टाइम,
हाँ, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दिस बात वंस यू गेट इट अंडरस्टूड तो देन विल बी इजियर टू फॉलो लेटर ऑन. दिस टाइम इज लाइक सच ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट. एनर्जी ऑफ कृष्णा गेट्स ट्रांसफॉर्म, एक दूसरा रूप ले लेती है, वो शंभू का रूप ले लेती है, भगवान शिवा का ले लेती है. शिव भगवान जो है ना, वो भगवान की एक नजर है, भगवान की ग्लैंस है. तो दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू लॉर्ड शिवा. एंड दिस लॉर्ड शिवा, बिकॉज इट इज द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये तामसिक मोड में है, वो तामसिक है, तो वो और उसका प्रकृति का मिलन हो सकता है. तो दैट्स व्हाई प्रकृति उस दुर्गा माता एंड शिवा, उनका मेल होता है और वो पति पत्नी है आपस में. तो वो जो समय है वो प्रकृति शिव भगवान बन जाता है, वो यानी जो समय है, और वो इंसान जो जीवित इंसान जो लिविंग एंटिटीज हैं उनको ट्रांसफर करके दुर्गा के उसको गर्भ कर देता है, गर्भवती कर देता है, उसको प्रेग्नेंट कर देता है. फ्रॉम देयर वो अभी महामाया है, वो जो इंसानों को अलग अलग प्रकार के शरीर देंगी. अभी वो किस प्रकार के शरीर देती हैं? तो शरीर वो मिलता है जो उसकी इच्छा हो, या पिछले कर्म किए हो, जो पिछले समय के जो कर्म जमा हुए होंगे उस हिसाब से आपको शरीर मिलेगा, या तो आपकी इच्छा से. समझो कि ये पहली बार हो रहा है, समझो फर्स्ट टाइम हो रहा है. एक हाइपोथेटिकल है, जस्ट फॉर यू टू इमेजिन, क्योंकि ये तो अनंत है. इट हैज नो बिगिनिंग नो एंड, न आद है न उसमें अंत है. समय को न आद होता है न अंत है, क्रिएशन को न आद होता है न आदि होता है न अंत होता है. तो ये एक हाइपोथेटिकली ऐसे सोच सकते हैं, लेट्स सपोज दैट वाज द फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम कौन से रूप मिलेगा हमें? जो हमारी इच्छा का रूप है, जो हम डिजायर करते हैं. तो उस डिजायर के हिसाब से हमें महामाया जो है हमें वो रूप देती है, और वो रूप लेकर हम फिर आते हैं ये आनंद भोगने के लिए. हाँ, ये आनंद भोगने के लिए हम आते हैं इस संसार में, क्योंकि ये समझते हैं कि अभी हम आनंद लेंगे. तो सॉरी, तो ये जो यहाँ पे लिखा है, हिज ग्लैंस इज टाइम इज पर्सोनिफाइड एज लॉर्ड शिवा. टाइम कैरीज ऑल द लिविंग एंटिटीज एज सीड्स इन द वूम ऑफ प्रकृति और दुर्गा देवी. तो ये टाइम जो है इट टेकिंग ऑल द लिविंग एंटिटीज. वो लिविंग एंटिटीज फर्स्ट टाइम तो गोलोक में होते हैं व्हेन दे आर नित्य सिद्धास, पर लेकर बाद में जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं देन दे बिकम्स नित्य बद्धास, दे बिकम कंडीशन सोल्स. वो बद्ध हो जाते हैं, फंस जाते हैं अपने इच्छाओं से. एक बार जो इच्छा के चंगुल में फंसा ना, वो एक भी इच्छा जो जागृत होगी आपके मन में ना, उससे और 200 इच्छाएं आ जाएंगी, ऐसे बढ़ते जाएगा. अब वो ऐसा उसका एक्सपोनेंशियल इफेक्ट है कि वो 100 200 200 बन जाते हैं, 200 2000 बन जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाता है. इच्छाएं का अंत ही नहीं होता. तो वो इसको इसलिए बोलते हैं इंसानों को बद इंसान, कंडीशन सोल. वो कंडीशन होता जाता है. हाँ? ठीक है. तो दिस इज एक्सप्लेन, अगर वहां पे लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में 3:5:26 में अगर आप जाओगे वहां पे देखोगे कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिटेल में, जहां पे प्रभुपाद ने सिग्निफिकेंस में, तात्पर्य में पूरा समझाया गया है कि हाउ महाविष्णु इम्प्रेग्नेट्स द मटीरियल नेचर. और वो भी इसलिए क्योंकि हमने पहले देखा कि इंसान चाहते थे कि हम आनंद पाए, हम अपने अपने बल से आनंद पाए, जो हम कर सके हम अपने बल से आनंद पाए. तो अपने बल के आनंद पाने के लिए भगवान इनके लिए ये सुविधा करते हैं. ठीक है. तो ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय नहीं होता तो ये जो प्राणी है, जो जीवित प्राणी है, तो वो ट्रांसफर कैसे होते. ये ट्रांसफर जो हमें करना है फ्रॉम गोलोक टू मृत्यु लोक, और जो भौतिक संसार है वहां पे ट्रांसफर कैसे होते. तो ये समय हमें ट्रांसफर करा रहा है, दिस टाइम. और टाइम फैक्टर जब आता है तो कैलकुलेशन आ जाती है. अभी हम देखेंगे द मदर नेचर provides the living entities with different bodies according to their past deeds and desires. ये हमने पहले जैसे बताया, जो भी अभी कौन सा रूप मिलता है हमें, कौन सा शरीर मिलता है, जो हमने इच्छा रखी थी पहले, जो हमें उत्पन्न हुआ था इच्छा, और जो हमने जो पहले कार्य किए थे उस हिसाब से हमें प्रकृति वो शरीर देती है. तो यहाँ देखो कि अनेक प्रकार के जानवर हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी पेड़ वगैरह, इंसान, अलग अलग इंसान. ये तो समझो धरती के हो गए. फिर अभी परलोक में जाओगे, स्वरलोक में जाओगे तो अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं. हाँ, ब्रह्मा तक अलग अलग होते हैं, पाताल लोक में होते हैं. तो न जाने कितने ही प्रकार, बोलते हैं शास्त्र में समझाया गया 8.4 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ वी हैव. तो कौन से स्पीशीज में हमें जन्म मिलता है वो हमारे इच्छा के ऊपर आधार डिपेंड करता है, और हमारे जो पिछले कर्म है उसके ऊपर आधार करता है ये सब.
तो ये यहाँ हमने तक यहाँ तक बात की। अभी टाइम क्या करता है, टाइम की यानी महिमा क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो कौन से कार्य में क्या कार्य करता है। इट्स अ मिक्सिंग एलिमेंट and it is counted as the 25th element. Okay, all these material elements are considered as qualified Brahman. अभी इसका मतलब क्या हुआ, जो मिक्सिंग एलिमेंट क्या होता है। सपोज आपको अगले टाइम हम अगले सेशन में देखे थे कि मटेरियल एनर्जी है, जो मटेरियल एनर्जी के पास 24 तत्व होते हैं, जिसको मिला के इंसान को एक रूप मिलता है, जो जीव को एक रूप मिलता है। वो कौन से हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एथर, ये सब मिला के, ये सब 24 एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स जो हैं, जैसे आप सपोज कुक हो, आप सब्जी बना रहे हो अभी, ठीक है, उस सब्जी बना में आपने सब काट छूट के रख दिया, हाँ, जो बैंगन का भरता समझो, ये काटा, नमक, मसाले सब रख दिए, तैयार कर दिए, गैस भी आपके सामने पड़ा है, तेल डाल दिया, पानी डाल दिया। अच्छा, आप ऐसे ही बंद करके रख दोगे तो वो जो सब्जी है वो स्वादिष्ट बनेगी? क्योंकि आपने उसको तो मिलाया ही नहीं, आपने ऐसे डालते गए, पहले थोड़ा तेल डाल दिया, मसाले डाल दिए, उसको फिर काट के सब्जी डाल दी, ये डाल दी, सब जो डाल दिए वो एक ऊपर एक आता गया, और वो गैस भी जल रहा है, लेकिन उसमें से अच्छी सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी। वो सब्जी बनाने के लिए आपको उसका मंथन, उसको बेलना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। एक चम्मच लेके जो होता है, जो लकड़े का चम्मच जो होता है, उससे जो करते हैं, कुक्स बनाते हैं, जो बावर्ची करते हैं, उसको भूनना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, ताकि जाके बाद में, तो ये टाइम ये काम करता है। टाइम जब लिविंग एंटिटीज आ जाते हैं, जो प्राणी आ जाते हैं, गर्भ में आ जाते हैं महामाया के, तो वो जो महामाया में तो 3 गुण होते हैं, जो 3 गुण कौन से होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हाँ, ये 3 गुण होते हैं। वो गुण अलग अलग जीव से अलग अलग क्वांटिटीज में मिक्सचर होते हैं उनके। आप समझते हो, जैसे कोई सब्जी में किस प्रकार का मसाले चाहिए होते हैं, कुछ सब्जी में अलग प्रकार का मसाले चाहिए होते हैं। सब सब्जियों को सब एक प्रकार का मसाले और नमक ये नहीं होता ना, किसको कम तेल, किसको ज्यादा तेल, किसको कम, तो अलग अलग होते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग जीवों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो उनकी गुण भी उनको अलग अलग मिलते हैं। इनको रजोगुण का ज्यादा होता है, किसको सतोगुण ज्यादा मिलता है। तो ये एक पूरी एक साइंस है क्रिएशन की, ना? तो सॉरी, हाँ, तो ये जो भी एक्सपेंशन है, ये ऊर्जा का विस्तार है। जो भी हम देख रहे हैं ना, वो भगवान की ऊर्जा, जो इसकी एनर्जीज है ना, उसका विस्तार हो रहा है। तो ये 25th एलिमेंट है, वो टाइम, वो भी ब्रह्मन है। जो दूसरे भी जो तत्व हैं, वो भी ब्रह्मन है। ब्रह्मन यानी भगवान से प्राप्त होना, जो भगवान से विस्तार उसके हुए, जिसका विस्तार भगवान से होता है, वो ब्रह्मन होता है। जो धातु हैं, जो भी तत्व हैं, जो भी ये समय है, आ तो भगवान से रहा है ना, तो ब्रह्मन तो सब हो गए। हाँ, तो ये एक्सपेंशन जो हमारी शुरू होती है, जो सामग्री का विस्तार जो होता है, हाँ, वो इस प्रकार से होता है कि जो 3 गुण और जो 25 एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो उसमें से मटीरियल एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म, इसको निर्गुण ब्रह्म में बोला जाता है कि निर्गुण ब्रह्म यानी इसमें नो मटीरियल कंटेमिनेशन जो होती है। एक है जो सगुण ब्रह्मन, सगुण जो हम लोग ने जो जिसमें 3 गुण आ जाते हैं, और दूसरा होता है निर्गुण ब्रह्मन, जिसमें किस प्रकार का, वो सिर्फ हमें आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर में, आध्यात्मिक दुनिया में मिलता है। जो भगवान के लोक हैं, जैसे परलोक है, जैसे वैकुंठा है, जैसे या गोलोक वृंदावन में, तो वहां पे हमें वो इस प्रकार का निर्गुण भ्रमण होता है। और जो हम संसारी जो आध्यात्मिक जो भौतिक संसार है, उसमें सगुण भ्रमण होता है। यानी है तो वही तत्व है, लेकिन जो अर्थ, वाटर, फायर है, तो जो भी है मिक्सचर्स, तो है तो सब स्पिरिचुअली है मिक्सचर्स, लेकिन उसमें कंटेमिनेशन आ जाती है। वो कंटेमिनेशन क्या की है, डिजायर की। वो डिजायर हमें के होने से ये जो हमें अलग अलग प्रकार का गुण आ जाता है उसमें। ओके, so this is the philosophical aspect of it. So the mixing element is time and is counted as the 25th element. तो 24 elements plus time mix करोगे तो जाके हमें एक रूप, पूरे complete रूप आ जाता है with all the gunas included. इसलिए जब देखोगे कि बच्चे पैदा होते हैं, अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार का गुण होता है। जरूर नहीं कि हर बच्चा एक ही
समान होगा। हाँ, किसका कैरेक्टर कौन सा होता है, दूसरे का कैरेक्टर क्या होता है, तो इस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर्स पैदा होते हैं बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट गुणास। ठीक है, तो अभी ये टाइम क्या करता है? टाइम अलाउज द मटेरियल एनर्जी एंड द लिविंग एंटिटी टू एक्ट विद इन इट्स स्कोप। ये मिक्स हो जाते हैं मटेरियल एनर्जी और लिविंग एंटिटी, जिसको उसको डिजायर जो भी होती है वो डिजायर पूरी कर सकते हैं। अभी उनके पास रिसोर्सेज हैं क्योंकि मटेरियल एनर्जी उसको रिसोर्सेज दे रही है। जैसे कि आपको कुछ काम काज चलाना है, आप किसी शाहूकार के पास जाते हो या बैंक के पास जाते हो, लोन लेते हो तो उससे पैसे मिल जाते हैं। तो आप यानी लिविंग एंटिटी हो, मटेरियल एनर्जी यानी पैसे हैं, आपके पास पैसे भी हैं और आपको काम करने की शक्ति भी है, ज्ञान भी है। तो अभी क्या करना है, ये दोनों मिला के आपको अपनी फैक्ट्री या जो भी काम काज करना है वो काम करोगे तो उसमें से नफा या नुकसान दोनों हो सकते हैं ना। तो ये इस तरह से चलती है। जो टाइम है तो इट्स लाइक द मनी, वो आपको भगवान के द्वारा जो समय दिया गया है इस रियल एक्चुअली ट्रू मनी। आपको जो भी पैसे वैसे दूसरे जो पैसे कमाते हैं वो सच्चे पैसे नहीं है, इट्स नॉट ट्रू मनी, वो गवा दोगे कभी ना कभी। लेकिन रियल मनी है वो टाइम है, जो हमें मौत के तरफ ले जा रहा है वो टाइम है। हाँ? अगर ये वक्त गवा देंगे, उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हमारी लाइफ यानी यूजलेस हो गई, यानी वी आर नॉट मेड अ प्रॉपर यूज ऑफ द टाइम। ओके, सो टाइम इज अलाउइंग द मटेरियल एनर्जी एंड द लिविंग एंटिटी टू एक्ट विद इन इट्स स्कोप। उसको एक प्रकार, एक सेकंड, आई थिंक देयर आर सम मैसेजेस बीइंग सेंड। ओके सॉरी, या तो उस प्रकृति और टाइम का मिलन, वो टाइम प्रकृति और जीव का मिलन जो है वो टाइम करवाता है। हाँ, जो टाइम इज अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट, वो टाइम से ही मेजरमेंट शुरू हो जाती है। आप कब पैदा होते हो, कब मरते हो, किस वक्त किस उम्र में शादी करते हो, किस उम्र में आपके बच्चे आते हैं, वो टाइम के जरिए ही पता चलता है। अगर टाइम नहीं होता, सोचो कि पूरी रात अंधेरा ही अंधेरा होता। हाँ, सूर्य कभी सूर्य उदय नहीं होता या सूर्यास्त नहीं होता, तो फिर सूर्य उदय सूर्यास्त होता ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होता, तो आपको कैसे पता चलता? आप कितना समय आप कैलकुलेट कैसे कर सकते थे कि इतने बरस में जिया हूँ, इतने बरस में सोया हूँ, इतना समय में जागा हूँ? आप कैसे जान सकते थे अगर टाइम नहीं होता तो टाइम इज अ कैलकुलेटिव फैक्टर। टाइम इज अलाउइंग अस टू मेजर आवर एनर्जीज व्हिच वी आर इन्वेस्टिंग, एंड टाइम एनर्जीज, द लिविंग एंटिटी इज इन्वेस्टिंग इन मटेरियल एनर्जी। It is allowing us to measure. तो लिविंग एंटिटी एंड द मटेरियल एनर्जी इंटरैक्ट थ्रू टाइम। ओके, तो इसके लिए हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल इसका प्रमाण हो जाता है, हमें इसकी जानकारी आ जाती है। हम बोल सकते हैं पिछले समय में ये हुआ था, आज ये हो रहा है, कल वो होने वाला है। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, ये समय ही नहीं होता, तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहाँ से आता और कर्म कहाँ से आते? क्योंकि अगर इंटरेक्शन ही नहीं होती समय में और शक्ति में, और जो भौतिक शक्ति में अगर इंटरेक्शन भी नहीं होती तो कर्म भी नहीं प्रोड्यूस होते। तो कर्म भी नहीं होते, भोग भी नहीं होता, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो भोग कैसे करोगे, उसका आनंद कैसे लोगे, पैसे कैसे कमाओगे? जब जो आनंद भोगने वाली जो बातें होती हैं वो कर्म के बाद ही होती है ना। आप कोई काम करोगे, काम से उसमें लाभ आएगा तो उसका आनंद लोगे ना। तो लाभ लोगे तो उसके लिए कर्म पैदा हो जाएंगे, तो पिछले कर्म होंगे, आज के कर्म में, वर्तमान के कर्म होंगे, भविष्य के कर्म। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो आ जाते हैं जब भी हम देयर इज अ मिक्सचर, व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बिटवीन टाइम एंड मटेरियल एनर्जी। ठीक है, okay, let me stop here for some time and see if it is everything going okay with you, and you can discuss, you can say something. I mean, whatever you found interesting or you found is too heavy or is going on, but जो बेसिक फैक्टर है, समझ लो कि ये जो खाना बनाने का जो चमचा होता है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो बावर्ची का स्त्री जो बनाते हैं घर में खाना, अगर उनके पास वो लकड़े का चमचा नहीं होता ना खाने बनाने के लिए, तो मज़ा नहीं आता। आप जो बनाते हैं खाना, जो बनाते हो घर पे, जो भोग बनाते हो, आपको जानकारी ज़्यादा होगी। आप ही बताइए, आप अपनी ओपिनियन दीजिए। हाउ डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल? अपने फिंगर से तो नहीं कर सकते ना। हाँ,
संगीता जी आप बताइए, आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो सब में से। आपको माइक माइक ऑन करना। मैंने कहा चम्मच के बगैर खाए नहीं बन सकते, खिला ही लगेंगे उसको। तो वो बने ही नहीं, कैसे बनेगा? हाँ, तो यानी कहने का वो मिक्सिंग जो एलिमेंट है, मिक्सर जो है बहुत जरूरी है, राइट। मिक्सर बिना काम ही नहीं चलेगा ना, जो मिक्सिंग एजेंट है। तो इसी प्रकार जो टाइम है ना, वो मिक्सिंग एजेंट है। अगर भगवान टाइम नहीं का उत्पादन नहीं करते तो ये जो मटेरियल एलिमेंट्स तो पड़े थे महामाया के पास, वो सब एलिमेंट्स तो रेडी हैं, लेकिन उसकी मिक्सिंग नहीं होती। तो ये हम जो रचना देख रहे हैं, जो हमें अलग अलग रूप मिले हुए हैं, वैरायटी ऑफ रूप्स हैं, डाइवर्सिफाइड रूप्स हैं, इंसान का रूप, जानवर का रूप, इतने प्रकार के न जाने नाना प्रकार के रूप हैं। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग एंड प्रॉपर मिक्सिंग। आप देखोगे एक हमारे यानी इंसानों में के बीच में एक ही माता के अलग बच्चे होते हैं। अब समझो 4-5 बच्चे हुए तो 4-5 बच्चे एक समान तो नहीं लगते ना, सब अलग अलग होते हैं, रूप में अलग होते हैं, बुद्धि में अलग होते हैं, जो भी है उनका जो मन होता है वो अलग होता है। सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग प्रकार के? अभी माता तो एक ही है, पिताजी भी एक ही है, बीज भोगने वाला भी एक, माता जो है जो गर्भ है उसका भी वो एक ही गर्भ है। तो फिर अलग अलग प्रकार के क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो अलग अलग मोड्स हैं, जो हमारे जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। वो गुण कहाँ से आते हैं? वो हमें महामाया देती है अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डिजायर्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस कर्मस। हमने पिछले कर्मों और पिछले जो इच्छाओं के द्वारा जो उसके आधार पर हमें अलग अलग गुण के डोजेस दिए जाते हैं। भाई तुम्हें 10% अगर सत्व गुण मिलना चाहिए, 70% पैशन वाला जो राजोगुण होना चाहिए, बाकी के 20% आपको तमोगुण मिलेंगे, क्योंकि आपने ऐसे चाहत की थी, आपने ऐसे एक्टिविटी की थी। तो ये आपके एक सब्जी बन गई, तो ये सब्जी जो निकली आगे, चलो बैंगन का भरता आगे निकला, बाकी भी दूसरी सब्जी बनानी है तो उसके प्रोपोर्शंस अलग अलग हो जाते हैं, उसमें नमक अलग पड़ेगा, उसमें मसाला अलग पड़ेंगे, इसमें तो जो है तो दूसरा इंसान, दूसरा रूप आ जाता है। तो इस प्रकार हमें वो क्या प्रोवाइड करती है कि उनके पास तत्व तो सब हैं, लेकिन तत्व तो सबके एक ही होंगे। जैसे जो धरती, आकाश, पानी, वायु जो होता है ना, वो सब जीव में एक ही प्रकार का होता है, सिर्फ उसमें गुण अलग अलग मिल जाते हैं। जो गुण होते हैं, जो 3 प्रकार जो गुण हैं, वो अलग अलग डोजेस में दिए जाते हैं। दैट्स द मेन थिंग। तो वो मिक्सिंग करना पड़ता है, वो उसको मिला के वो टाइम से मिक्स करना पड़ता है, और वो समय से आपको कभी आना है, वो समय के ऊपर आधार करता है कि आप कब ये रूप लेके आओगे। ऐसे नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप सपोज इस वक्त अभी आप शरीर छोड़ देते हैं, कोई भी हम में से कोई शरीर छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं है कि निश्चित कि आप दूसरे दिन ही आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा। कभी कभी कुछ समय भी लग जाता है। हाँ? वो जैसे कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे जजमेंट कोर्ट्स होते हैं, हाँ, तो उसमें भी कौन से केस डाले जाते हैं, तो केसेस में समय लगता है ना। हमारे संसार में देखो, कभी कभी कोर्ट का केस 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, कभी 6 बरस भी लग सकते हैं। तो यमराज का भी जो कोर्ट है ना, उसमें भी समय लगता है कभी कभी। हाँ, उसमें भी कभी कभी क्यों हो जाती है भाई, कौन से केसेस कभी कहाँ कौन सा किसका केस लेना, तो कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है। तो वो समय भी यानी एक प्रबंध है भगवान का, ये ऐसा नहीं है, इस कोइंसिडेंस नहीं है। तो आपको कितने समय के बाद वो शरीर मिलने वाला है, वो आपको वो भी निश्चित हुआ है। हाँ, ओके, सो भाई, बोलिए। भाई हाँ बोलिए ना। आपने जो समय का वर्णन किया, व्याख्या किया, हमारे लिए तो ये गुह्यंतर जैसा है। क्या जैसा है? गुह्यंतर, सीक्रेट ऑफ ऑल द नॉलेज। सीक्रेट ऑफ ऑल द नॉलेज, यस। हाँ, क्योंकि ये देखो भागवतम में जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये जो पूरा ज्ञान भागवतम में से आ रहा है ना, इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट नॉलेज। ये यूनिवर्सिटी की नॉलेज है, ये यानी स्कूलों वाला नॉलेज, प्राइमरी स्कूल वाले नॉलेज नहीं है। तो ये जो है, ये ज्ञान जैसे भगवान ने भगवत गीता में जो अर्जुन को दिया ज्ञान, वो भी भगवत गीता का ज्ञान दिया, समझते हो? इट वॉज नॉट अ भागवतम ज्ञान। सो वी आर टॉकिंग नाउ ऑन सम वर्सेस व्हिच वी आर गोइंग टू टच, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये है समय। हमने प्रकृति के प्रकृति के बारे में लेकिन समय के बारे में पहले
आप इस सॉरी, आपका आवाज जा रहा है। आ गया आवाज मेरा? अभी आया, हाँ। हाँ नहीं, मैं क्या बोला कि जीव के बारे में सुना है, प्रकृति के बारे में मैंने सुना है, लेकिन समय के बारे में पहली टाइम मैंने सुना है। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जैसे इसलिए आप घर में भी देखोगे ना, हम वो पूछते हैं खाना क्या बना, सब्जी पड़ी है कि नहीं है, तेल वगैरह है कि नहीं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि वो जो लकड़े का चमचा है मिलाने वाला वो है कि नहीं घर पे। वो खाली वो जो बनाने घर की माता जी हैं वही जानती हैं, वो चम्मच बिना वो काम ही नहीं चलेगा, वो मिलाने वाला काम। तो इसी प्रकार से जो समय है ना, समय इज द मिक्सिंग एलिमेंट फॉर ऑल द 24 एलिमेंट्स। जो बाकी जो 24 तत्व है ना, उसको मिलाने वाला वो समय होता है। तो वो समय के द्वारा के मात्र से ही वो जो हमारे जो जीव है वो भी ट्रांसफर होते हैं। जैसे चम्मच से लिया जाता है ना, कोई गर्म तेल होगा जो घर में हो तो चम्मच से लिया जाएगा ना, हाथ से तो नहीं लेंगे ना। तो इसी जो भगवान की नजर है उसमें वो नजर, जो ग्लैंस है वो समय है, और वो जो ग्लैंस है वही ट्रांसफर कर रही है हम सब जीव को अंदर। वैसे हम सब जीव भगवान के शरीर में शामिल होते हैं, तो हम वहीं पे वास करते हैं। जब प्रलय होता है ना, अभी जब ये अनंत काल आता है, जब ब्रह्मा की उम्र खत्म होती है, ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है, तो एक प्रलय काल आता है, एक ऐसा भयंकर प्रलय काल आता है कि सब नुकसान, सब सत्यानाश, सब विनाश हो जाता है। तो सब में जीव सब वहां से जीव जाते हैं, और सब जीव जाके माँ विष्णु के शरीर में शामिल हो जाते हैं, उसमें उधर जाके वास करते हैं टेम्पररी, जब फिर से सृष्टि रची जाए। वहीं से यानी फिर जागृत होते हैं, फिर वहीं से समय के नजर के द्वारा वो महामाया में जाते हैं, और महामाया फिर से एक सृष्टि रचती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, एक और आपने अच्छी बात कही कि समय सबसे बड़े में बड़ा धन है। तो मैं एक थोड़ा शेयर करना चाहूँगा हमारे भाई बहन से, कि जैसे एक बताया था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने बॉडी छोड़ रहा था, तो उसने अपने डॉक्टर को बोला कि मुझे कुछ समय, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, तो मुझे थोड़ा समय दो, मुझे और जीना है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं कुछ समय नहीं दे सकता हूँ। तो उसने बोला मैं अपनी सारी जो भी मैंने ये प्रॉपर्टीज और ये जो भी हमारे राज्य है सब आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, 1 घंटा और दे दो। तो बोला 1 घंटा का 1 मिनट भी नहीं दे सकता हूँ। तब उसने जाना कि समय से बड़ा धन कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय सबसे बड़े में बड़ा धन है। तो उससे हम फालतू खर्च न करें, समय हम ऐसे ही गवाते हैं। और आजकल के जनरेशन को किसको भी पूछो तो एक ही जवाब है, अगर उसको पूछो मंदिर क्यों नहीं आते हो, मुझे समय नहीं है। नाम क्यों नहीं जपते हो, समय नहीं है। कुछ ये नहीं करते हो, समय नहीं है। तो वो समय व्यर्थ चीजों में वेस्ट करते हैं। और तो ये मैं रिक्वेस्ट है कि समय को सबसे जो बड़े में बड़े धन है तो उसे अच्छी तरह खर्च करें। यस, बहुत अच्छे प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी नाइस एग्जांपल। हाँ, जैसे बड़े बड़े ऐसे यानी ये तो देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट तो यानी महान व्यक्ति है। हाँ, हमें इतिहास में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, इस इतिहास में ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे कम लोग होते हैं, फिर भी वो अपने आप को बचाव नहीं कर पाए। हाँ, ऐसे और भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महान व्यक्ति है हमारे संसार में, जो भौतिक के हिसाब से यानी मटीरियलिज्म के हिसाब से, हाँ, तो वो बहुत पावरफुल है। लेकिन अभी जैसे बीच में भी ऐसे थे, जैसे स्टीव जॉब्स थे, जो आईफोन के जो बहुत यानी जो ओनर थे, प्रोप्राइटर थे, को प्रोप्राइटर, उनके पास अभी पूछो, उनके पास धन कम था, तो वो तो बोल रहे थे ना डॉक्टरों को भी, अभी कुछ पूरे का पूरा धन ले लो मुझसे, लेकिन मुझे फिर से जीवन दे दो। लेकिन वो जीवन नहीं मिलता ना, इसलिए वो क्षण जब अंत काल आएगा, जब अंत समय आ जाएगा, वो क्षण हमारे लिए एक एक जो क्षण होगा इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, इतना कीमती हो जाएगा कि हम चाहेंगे कि हमें 2 सेकंड 2 पल और भी मिले, जीवित हुए तो हम कुछ कर सके, भगवान को याद कर सके या कुछ ऐसा कार्य कर सके। तो वो समय फिर नहीं आया। तो इसलिए अच्छा है जब हम ठीक ठाक हैं, हम जवान उम्र में हैं, जवानी की उम्र में हैं, बचपन जवानी क्यों, बचपन से ही जब जिससे पैदा होते हैं, क्योंकि पैदा होते हैं और मरने का इसका जरूरी नहीं है कि आपको 80 साल की, 90 साल की और 100 साल की उम्र आपको मिलनी ही है, गारंटी तो नहीं है ना। वैसे मिलने चाहिए, वैसे आप आए हो संसार में तो आपको ये जो 100 वर्ष बताए जाते हैं कि 100 वर्ष जीवन जो होता है इंसानों का, इतना तो जीवन मिलने चाहिए हक से, मगर जरूरी नहीं है, क्योंकि हम पिछले कर्म क्या करके आए, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है वो हम नहीं जानते ना।
तो अभी भी ठीक है, अभी अब जो भी हैं 50, 60, 70 जो भी हैं इस उम्र तक पहुंच गए हैं, अभी भी कुछ नहीं गवाए हैं, अभी भी इस समय भी वक्त है, अभी भी पकड़ लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी भी सागर में तो है ना, अगर सागर में तो तैर सकते हैं, अगर सागर में नहीं होते तो फिर कहाँ तैरते। सागर में है, तैर सकते हैं, कोई जहाज जा रहा है, पानी का जहाज है, उसको पकड़ सकते हैं, उसके सहारे हम इस सागर को पार कर सकते हैं। तो ये सागर ही पार करना है और समय अभी भी है। हाँ, इस समय अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, एंड वी इट्स नेवर टू लेट। तो ठीक है, वी विल नाउ कंटिन्यू रैपिडली विद द रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स। तो टिल नाउ इज ओके, राइट? आई मीन इज फाइन। Yeah. So can you write in the chat, okay? Some people, at least, you know, I can get to know that others are also viewing it and they're finding it fine. तो चैट में खाली लिख देंगे ना, ओके ओके, ठीक है, फाइन, कि आप हो यानी कनेक्टेड हो। ओके, सो वी गॉट फ्यू ओकेस, फाइन। कहीं भी कोई वैसा ऐसे नहीं है कि हमें ये आज ही खत्म करना है, या we can continue later also. कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो we can stop and continue the discussion. The most important portion is that we should understand the content. The content is, today's content topic is time, and time is very very important, and we are neglecting it. हम बहुत उससे नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उसको देखते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, समय गवा ही रहे हैं, and that समय has to be, so we will see now again how. So अभी यहाँ पे बताया जो लिविंग एंटिटी एंड मटेरियल एनर्जी एंड टाइम आर ऑल इटर्नल। हाँ, तो लिविंग एंटिटी यानी जीव, जो प्रकृति एंड समय, ये सब शाश्वत है, हाँ, अमर है, अनंत है। बट दे बाय प्रोडक्ट, जो उसमें से पैदा होता है, जो उसमें से रिजल्ट आती है, वो कर्म है। क्योंकि जीव जब प्रकृति से मेल जोल करेगा समय के साथ मिलके, तो इस समय, जैसे समय यानी क्या हुआ, सपोज आप 20 वर्ष के हो, तो उस समय आप प्रकृति का कौन सा मेल जोल करोगे? लिखाई पढ़ाई का, कॉलेज का, ये यूनिवर्सिटी का, ये आपका वो होगा काम, तो उसमें से अलग कर्म पैदा होंगे। आप 30 वर्ष के होगे तो आपका कर्म अलग बदल जाएगा, कि आपकी जो आपका रिश्ता है, जो जीव का रिश्ता है विद मटेरियल एनर्जी विल बी डिफरेंट। आप यानी शादी करोगे, बच्चे होंगे, व्यापार करोगे या नौकरी करोगे, जो भी होगा तो आप करोगे, तो आपके कर्म अलग। तो बाय प्रोडक्ट्स जो है ना, वो अलग अलग समय पे अलग अलग बदलते जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन what age you are, what perspective you are having of life. तो वो जो कर्म है ना, that is not eternal. अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जो 5 कॉन्सेप्ट हमने जो अब सीख रहे हैं, जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो पहले था ईश्वर था, फिर जीव था, प्रकृति था, आज काल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अगले समय जाके कर्म के बारे में बोलेंगे। लेकिन इन 4-5 बेसिक फैक्ट्स में से जो 4 है ना, वो शाश्वत हैं, नित्य है, they are eternal, they will never get over, there are no beginning nor end. But जो कर्म है, it has a beginning, and best part is that it has an end. सुख आएगा, उसकी बिगिनिंग है, आज नहीं आ रहा है, चलेगा, लेकिन कल आएगा। दुख है, जाएगा, उसकी एंड, उसकी ड्यू डेट भी है। ऐसे नहीं कि ऐसे लगने लगे कि मैं तो पूरी जिंदगी दुखी देख रहा हूं, मुझे तो दुख का अंत का निशाना ही नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, दुख विल ऑल्सो कम, इट विल गेट एंड, एंड सुख विल ऑल्सो बिगिन। तो वी जस्ट हैव टू वेट फॉर टाइम। हमने पता नहीं क्या किया होगा, हमें वो जानते नहीं है। एट व्हाट टाइम व्हाट फ्रूट्स वी आर गोइंग टू गेट, कुछ समय कौन सा फल हमें हाथ में आ रहा है वो पता नहीं है, लेकिन आना दोनों है। सुख है तो दुख भी आएगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगी, रात है तो दिन भी आएगा। हाँ, ये निश्चित है। तो टाइम इवन कॉजेज, अभी टाइम देखो कितनी बलवान है, इट इज कॉजिंग द मटेरियल एनर्जी टू बी मटेरियल। वैसे जैसे हमारे सवालों में पूछा गया था कि महामाया क्या है, कौन सी शक्ति है, इटर्नल शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, या प्रकृति है, या एक्सटर्नल शक्ति है, बहिरंगी शक्ति। तो जवाब था बहिरंगी शक्ति है। वो किसके वजह से बहिरंगी बनी? समय की वजह से। समय ने क्या किया, उसको गर्भवती कर लिया, उसको कार्य में लगा दिया, भौतिक कार्य में लगा दिया। अभी भौतिक कार्य क्या होता है? जो कृष्ण का कार्य नहीं होता वो भौतिक कार्य हो जाता है, तो जो कृष्ण के कार्य में नहीं होता वो मटेरियल हो जाता है। एनीथिंग सेपरेट फ्रॉम कृष्णा बिकम्स माया। हम भी हैं, अगर भौतिक कार्यों में लगे पड़े हैं
संसारी कार्यों में लगे पड़े हैं तो हम कृष्णा के दूर चले जाते हैं, यानी हम माया में हैं। हाँ, लेकिन कृष्णा से जुड़ी हुई अगर कार्य करते हैं तो फिर हम एक प्रकार के फिर हम माया में नहीं होते, फिर हम कृष्णा से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद दिए होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई भी कार्य में लगाई जा सकती है तो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को आप यानी हीटिंग सिस्टम के लिए लगा सकते हो, या एक फ्रिज चलाने के लिए या फ्रीजर चलाने के लिए लगा सकते हो। हाँ, आइटम्स अलग अलग हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो एक ही है। तो ये टाइम भी है वो एक ही है, आप किस उपयोग में उस टाइम को डाल रहे हो वो अलग अलग है। आप माया के उपयोग में लगा रहे हो या आप कृष्ण के उपयोग में लगा रहे हो, ये आपके ऊपर है। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे एक ही है तो वैसे समय भी एक ही है। हाँ, इज अंडरस्टूड? ओके, तो ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप देखोगे जैसे तस्वीर में दिखाई देगा कि कैसे महामाया है कृष्ण के आदेश के लिए खड़ी हुई होती है। बस सृष्टि यदि साधन शक्ति का छाए व यश भुवनानि विवर्ति दुर्गा। छाए व यश एक शेडो एजेंसी है, एक शेडो पोटेंसी है कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की इच्छा के लिए खड़ी हुई। इच्छा क्या चाहते हैं इस वक्त वो पूरा करने के लिए हमेशा सज होती है, जो भी जो होगा वो सज उसके लिए सज है। अभी आगे वर्ण देखते हैं, समय का जो वर्ण है इसकी डिस्क्रिप्शन। भगवद गीता 11:32 द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड सेज दैट ही इज टाइम एंड द टाइम इज ऑल डिस्ट्रक्टिव। हाँ, समय से सबका विनाश होगा, सब विनाश होने वाला है। हाँ, तो इसके बारे में जो इस वर्ड्स में जो भगवान समझाते हैं कि ये जो ही एक्चुअली द फुल वर्ड्स है दैट आई एम टाइम एंड द ग्रेटर डिस्ट्रॉयर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रॉयर, विनाशक हूँ मैं। सो पूरा जो मैं विनाश कर सकता हूँ, हाँ, दुनिया का। एंड आई कम हियर, बोलता मैं आया ही इसलिए हूँ, हाँ, इसका विनाश करने, नष्ट करने के लिए। जो भी लोग हैं सब मरने वाले हैं। लेकिन वो अर्जुन को बता रहा है, जो आप यानी वो अर्जुन को उस समय बता रहा है कि जो भी सामने क्षेत्र में खड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र में, वो जो दोनों पक्षों से जो खड़े हुए हैं, जो दोनों पक्षों से सब मरने वाले हैं। कुछ पांडवों को छोड़ के, यानी पांडवों को छोड़ के, और कुछ गिनती वाले ऐसे थे जो उनको छोड़ के सब मरने वाले थे। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए कृष्ण बोलते हैं आई एम टाइम। अगर आज नहीं करने चाहते हो, अर्जुन को बोलता है कि क्योंकि अर्जुन थोड़े क्या उजले हुए थे, हाँ, थोड़े उसको ऐसी बातें सुन के कृष्णा की जो ऐसे जो समझा रहे थे वो थोड़े उजले हुए थे। तो कृष्ण भी ऐसा रूप दिखा दिया ना, विराट रूप दिखा दिया था 11 अध्याय में। तो इसी अध्याय में था जो 11:32 में जो बात कर रहे हैं, इसी अध्याय में बता इसको विराट रूप दिखा दिया, तो थोड़े उजल गए थे ऐसे। हाँ, तो उसने इसके विभिन्न रूप इतने देखे तो उसमें वो समझ नहीं पा रहे थे वो हो क्या रहा है। हाँ, तो भगवान इस समय समझाते हैं, देखो तुम अब करो या मैं बाद में करूं। हाँ, करूंगा मैं, तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुम खाली एक मात्र बन जाते हो, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। हाँ, वरना अगर तुम नहीं करते हो तो मैं सबको निगलने वाला हूं। तो ये जो उसने रूप दिखाया कि उसमें शक्ति थी कि जो सामने खड़े थे उसको सबको निगल सके, मार सकते थे। लेकिन भगवान ने वो नहीं चाहते थे, क्योंकि हर किसका कार्य अपना खुद को करना पड़ता है। हाँ, वैसे तो हम बोलेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे अभी घर में जो बच्चे होते हैं उनको कौन सी ऐसी तकलीफ करनी पड़ती है। माँ तो, पिताजी बाहर जाते पैसे कमा के आते हैं, माता घर का काम करती है, भोजन परोसती है, ये करती है, वो बेटा तो बैठ के खा रहा है। तो हम बोलेंगे हम भी इस हिसाब से भगवान के बच्चे, तो हमको बैठ के खिलाना क्यों नहीं खिला रहे हैं भगवान? नहीं, वो खिलाते थे, अगर वैसे भी खिला ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा परिश्रम, थोड़ा मेहनत हमसे भी मांगते हैं ताकि उस फल का आनंद भी ले सकें। क्योंकि आप आनंद ही लेने आए हो ना, हम इस संसार में आनंद ही लेने आए हैं। तो आनंद लेने के लिए आपको कोई परिश्रम करोगे तो उसमें से जो भोग मिलेगा वो खाओगे तो आनंद आएगा। ऐसे बैठे बैठे ऐसे आएगा ना तो आपको उसका मजा नहीं आएगा। तो वो कार्य करने पड़ते हैं, और हमारे कर्म के हिसाब से भी वो कार्य हमारे हिस्से में आते हैं, वो हमें कर्म करने पड़ते हैं। तो भगवान इसलिए बोलते हैं अब कर लो, तुम मार लो इनको, या मैं बाद में इनको निकल लूंगा। इस क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली, नाउ और लेटर, बट करूंगा मैं। आया हूं इस कार्य के लिए आया हूं, और इस कार्य में ये कार्य होना ही है। तो टाइम इज डिस्ट्रक्शन एंड ऑल मैनिफेस्टेशन, जो भी है, एंड ऑल मैनिफेस्टेशन हैज टू बी वैंक्विश्ड। जो भी ये अभिव्यक्तियां हैं, जो मैनिफेस्टेशन है उसकी परास्त तो होनी ही है।
उसका नुकसान, उसका विनाश तो होना ही है। ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान जो भी है वो स्टैब्लिश करने आते हैं। जब भी जहां भी अधर्म बढ़ जाता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, किसी प्रकार भी आ जाते हैं, हाँ, किसी कोई भी रूप में, जरूर नहीं भगवान कृष्ण के रूप में। ये तो द्वापर का युग था, उस समय उसका आने का समय था तो आए थे, वैसे नहीं तो किसी रूप में भी आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं, उनमें कोई बंदिश नहीं है ना, क्योंकि सब रूप इसी के रूप हैं, तो कोई भी रूप ले सकता है। अब आप घर में जैसे आपके अलमारी में कपड़े पड़े रहते हैं, हाँ, आपको कोई बोल सकता है क्या कि आप ये कपड़े मत पहनो? हाँ, आपको फुल सूट पहनने की इच्छा थी, हाँ, तो फुल सूट पहन के निकल गए। कल को आपको अब अपने मर्जी के मालिक हो, कंपनी भी आपकी है, काम भी आपका है, आप बॉस के सीट में बैठे हो, आप जो भी पोशाक पहनने चाहते हो पहन सकते हो, देर से आना चाहते हो देर से आ सकते हो, अब जल्दी आना चाहते हो जल्दी आ सकते हो। हाँ, तो भगवान भी तो इस प्रकार का, इस सृष्टि का मालिक है, रचना के मालिक हैं ये सब। तो रचने के मालिक को कौन बोल सकते कि इस रूप में नहीं आ सकते हो? क्यों? क्योंकि इंसान का रूप ही सबसे सुंदर और सबसे अति सुंदर रूप है, और यही रूप में आना ही चाहिए आपको। आप जानवर के रूप में नहीं आ सकते हो। अरे उसमें कैसे बंदिश डालोगे? अगर भगवान में बंदिश होती तो भगवान का का भगवान वो जो स्वराट है, इंडिपेंडेंट, इज ओमनीपोटेंट, हाँ, इसमें इतनी शक्ति है जो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भी कुछ भी कर सकते हैं, जब हम शब्द बोलते कुछ भी कर सकते हैं, तो हम बंदिश नहीं डाल सकते ना, कि नहीं भगवान आए तो, जैसे कोई कोई ऐसे बिलीफ्स होते हैं जो कोई कोई पंथ ऐसे सोचते हैं कि नहीं भगवान आए तो मनुष्य के रूप में आए तो ठीक है, तो भगवान हो सकते हैं। अगर आप लोग कैसे कैसे बोलने लगते हो, निशिंगर का रूप लेके आए, आधा शेर आधा इंसान, या वराह के शिप रूप में आ गए, हाँ, तो ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकते हैं? उसके पोशाक ही हैं, उसके वस्त्र ही हैं। आपने एक वस्त्र पहन लिया, कल दूसरे, एक गाड़ी ले ली कल दूसरी गाड़ी ले ली, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो कोई आपको बंदिश नहीं डाल सकता कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, राइट? तो एक सेकेंड, ओके, तो इट्स ओके अप टिल नाउ, या? तो अभी हमने क्या देखा कि भगवान हैज हिज ओन इंडिपेंडेंस, ही कैन कम एट एनी टाइम, he can do any activity at any time and nobody is there to stop him, हाँ? तो ये this is also because of his time factor, क्योंकि अभी भी he is there with us, how? in time form, समय के बल से वो अभी भी हमारे सामने, हमें हर निजी जिंदगी, हमारी हर सेकंड की जिंदगी जो है वो उसमें शामिल है, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। टाइम फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के टाइम छोड़ो अभी। क्या? एवरीवन शुड आस्क क्वेश्चंस। अरे अभी तो समाप्त भी नहीं हुआ है, ठीक है? फिर ओवरडोज हो जाएगा बहुत। ओवर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। लेट मी सी देन, ओके, आई विल स्टॉप शेयरिंग, ठीक है? तो आपको कुछ सवाल है कि ये छोड़ दें, बाद में के लिए आपको मैं फिर उसमें भेजूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में? सवाल पूछना चाहिए। प्रभु जी, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए ना। प्रभु जी, मेरे को एक सवाल पूछना है। हाँ पूछूं? पूछो पूछो ना। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए ना, कौन है? राम प्रभु जी बोलिए ना। आवाज सुन रहे हम सुन रहे हैं। आवाज नहीं, हमको सुनाई दे रहा है अंकिल, आप बोलो, आप बोलो। शायद उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा। उसको नहीं सुनाई दे रहा है, उसको नहीं सुनाई दे रहा है। एक मिनट में मैसेज भेजता हूँ, उसको देखता हूँ। नेट का भी आवाज नहीं आई। समथिंग रॉन्ग। और कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले प्लीज। Okay, then sometime maybe.
Your voice is coming. हेलो प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं पूछना था कि हमारे जो भगवान है, राम है, गणपति है, तो वो एक ही प्लेनेट पे सब रहते हैं या देव देवताओं की जो हेवन है, तो सब जो भगवान की जगह रहते हैं कैसे? हाँ देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब वो दूसरा फोन बंद करोगे, नहीं तो क्या एको हो रहा है। वो दूसरा फोन है ना, उसके आप हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ओके, अभी सुनो, अभी आप बॉम्बे में रहते हो, ठीक है, तो कोई तो न्यूयॉर्क में भी रहता होगा, कोई टोक्यो में रहता है। हाँ अभी कंपेयर करने जाएंगे, ठीक है, बोलो ठीक है बॉम्बे और जैसे अभी हम आपस में जो रह पड़े हैं इधर, आपस में जो बैठे हुए हैं, कोई हमारे जैसे देखो कानपुर में रहते हैं, हमारे ब्रदर उधर कानपुर में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हो, राइट। अभी कानपुर वाला सोचता होगा बॉम्बे में कैसे रहते होंगे, अभी उधर घर 5 करोड़ 10 करोड़ के घर कैसे उसमें जीते होंगे, उनकी गाड़ियां कैसी होगी, उनके रास्ते कैसे होंगे। तो आप बॉम्बे वाले सोचते होंगे न्यूयॉर्क में कैसे रहते होंगे, हाँ, और न्यूयॉर्क वाले सोचते होंगे टोक्यो में कैसे रहते होंगे, शंघाई में कैसे रहते होंगे, इतनी बड़े बड़े शहर है विद 20 मिलियन पॉपुलेशन, 25 मिलियन पॉपुलेशन। हमारे यहाँ जैसे हमारा मलागा है, हमारे मलागा में खाली 10 लाख पॉपुलेशन है, वो भी बड़ी लगती है। अभी 10 लाख आपके बॉम्बे के कंपेयर करने जाओगे तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से ना, जैसे हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसी में ही अलग अलग इतना भेद है, शहरों में, देशों में और जो कॉन्टिनेंट्स में। हाँ, तो आप सोच सकते हो जो पूरी हमारी जो सृष्टि है उसमें कितना भेद होना चाहिए। अगर आपने इतनी ज्यादा, सपोज आपने अभी आपको एक लॉटरी लगती है 1000 करोड़ की, ठीक है, अभी 1000 करोड़ आप अगर लगेगी लॉटरी, तो आप जहाँ रह पड़े वहां तो नहीं रहोगे, आप जाके बड़े आलीशान बंगलो बनाओगे, नौकर चाकर, गाड़ियां आगे पीछे, घूमोगे फिरोगे, अपनी क्रूज भी रखोगे, राइट। तो आप में फर्क आ जाता है कि आपके पैसों के ऊपर, आपके जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा आपकी जो रहनी है बदलते जाएगी। तो देवी देवता में यही फर्क है, देवी देवता भी अमीर है, हमसे अमीर है, पैसों में नहीं, खाली फर्क वहाँ यहाँ है। हम यहाँ पैसे से तोलते हैं, वहां पे जो हमारी जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो पुण्य के ऊपर तोली जाती है। आप कितनी पुण्य करते हो तो आपकी पुण्य का जो अकाउंट है कितना जमा हो रहा है। तो इन्होंने बहुत पुण्य किए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुण्य किए हैं, तो उनके पास इतना धन आ जाता है पुण्य का कि वो इस धरती पे उस पुण्य का भोग करने के लिए जगह है ही नहीं। समझे कि आपको अगर 1000 करोड़ आ गए तो आपको बॉम्बे में रहने की लायक नहीं हो आप, फिर आपको कहीं दूसरे बड़े शहरों में जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े रास्ते, वहां के लायक बन जाते हो। तो इस प्रकार आपका जब पुण्य बढ़ते जाता है उसका जो आपके अकाउंट में जो बढ़ते जाता है, तो एक समय आएगा कि उस पुण्य को भोग लेने के लिए धरती पे उस समय ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां उसका पूरा उपयोग कर सको, उस भोग का, उसका पूरा आनंद ले सको। तो आपको प्रमोट किया जाता है और उसको बोलते हैं हम, जो उसको स्वर्ग लोग बोलते हैं जिसको। अभी स्वर्ग लोग और भगवान के लोग में फर्क होता है, क्योंकि हम जब कभी कभी बोले कहाँ गया बेचारा, छवि जो शरीर छोड़ के गया, बोलते हैं कहाँ गया, स्वर्ग में गया। नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग में ऐसा नहीं है, कोई भी स्वर्ग में चले जाएगा, पहले तो आपको पुण्य होनी चाहिए उस स्वर्ग में जाने के लिए। अच्छा, कभी कभी बोलते हैं भगवान के पास चले गया, वो भी गलत है। आपने ऐसी भक्ति की है भगवान की तरफ, भगवान के लिए जो ऐसी भक्ति की है जो आप लायक बनते हो भगवान के यहाँ जाने के लिए। हाँ, तो भगवान का लोग जो अभी जो हमारी जो क्रिएशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 14 प्लैनेटरी सिस्टम। 14 जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स, हमारे अब अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे जो अर्थ प्लैनेट है, जो बेसिक कॉन्टिनेंट्स हैं, दे आर 5 कॉन्टिनेंट्स, राइट। जैसे यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, एशिया हुआ, तो ये 5 ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो भगवान के क्रिएशन में 14 कॉन्टिनेंट, 14 डिविजन्स हैं। तो उसमें से 7 हैं दे आर स्वर्ग लोग हैं, जो हायर प्लैनेट्स हैं। जो 6 हैं वो लोअर प्लैनेट्स हैं, जिसको हम हेलिश प्लैनेट्स बोलते हैं, जहाँ पे ज्यादा दुख देखना पड़ता है। और जो बीच का है जो 14वां जो है वो धरती है। जो कर्म भूमि है ना वो धरती है, सिर्फ धरती में ही कर्म होते हैं। आप कर्म गवाओगे या कर्म कमाओगे। जो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं ना, जो दूसरी ग्रह हैं, जो दूसरे ग्रहों में जो हो रहा है वो भोग रहे हो आप फ्रूट्स, फल खा रहे हो, सिर्फ कर्म उसमें जमा नहीं होता। जैसे कि आपने प्लेन में टिकट खरीद ली, एक बार प्लेन में बैठ गए, बस आपको आनंद लेना है अभी,
बैठो, एयर कंडीशनिंग फ्री, खाओ, खाना भी लेके आएंगे, खाना भी खिलाएंगे, बाथरूम फ्री, एवरीथिंग इज फ्री। आपने पैसे एक बार दे दिए, आपको सिर्फ प्लेन में बैठ के भोगना है, आनंद लेना है, बस। तो इसी प्रकार आपने पुण्य कमा लिए, तो आप जब जाओगे स्वर्ग लोक में, ऐसे स्थानों में जाओगे, तो आपको सिर्फ उधर आनंद ही लेना है, आप कर्म नहीं पैदा करते हो। हाँ, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, आपके अकाउंट जीरो हो जाता है, बैलेंस आपके बैंक अकाउंट वहां का जो पुण्य खत्म हो जाता है, तो फिर आपको लाचार होकर फिर धरती पे आना पड़ता है। तो ये साइकिल है। ये जैसे योयो होता है ना, योयो देखा आपने, योयो जो बच्चे लोग खेलते हैं, हाँ, जो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता है, तो वो योयो की तरफ मेरी जिंदगी चल रही है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बीच में, कभी नीचे कभी ऊपर। ये योयो का खेल कब खत्म होगा? ये योयो का खेल तब खत्म होगा जब हम भगवान के लोक में चले जाएंगे। एक बार भगवान के लोग यानी कृष्ण लोक तक पहुंच जाते हैं, तो हम ये धरती के नियमों से दूर हो जाते हैं। ये धरती के अपने नियम है, जैसे जेल के अंदर एक नियम होता है, राइट, हॉस्पिटलों के अंदर एक नियम होता है। आप एक बार हॉस्पिटल में चले जाओ, भर्ती हो जाओ कोई भी, तो आपको इस कपड़ों में नहीं बिठाते हैं, आपको तुरंत कपड़े उतार देंगे, बिस्तरे भी ऐसे अलग प्रकार के बिस्तरे देंगे, ऐसे आलीशान वाले जो हम घर में बैठ के 3 फुट और 6 फुट वाला बिस्तरे वो नहीं होंगे। आपको जो होगा, जो हॉस्पिटल के बेड्स होंगे, आपको वही उसमें रहना, खाना पीना भी जो वहां का होगा वही खाना पड़ेगा, राइट। तो उसके नियम होते हैं, तो इस सृष्टि के भी नियम है। तो इस नियम के हम आज नियम से अगर निकलना है, तो हम सृष्टि से बाहर जाना पड़ेगा, तो हमें जाके भगवान के लोक में जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए फिर हमको थोड़े कार्य करने पड़ेंगे, थोड़े कर्म करने पड़ेंगे, थोड़े ऐसे भक्ति करनी पड़ेगी, ताकि वो भगवान के लायक हो जाए हम। क्वेश्चन इज, आर वी एलिजिबल? एलिजिबिलिटी है कि नहीं हम में? अभी सपोज कल को अभी कोई अमीर है, वो भले कितना भी अमीर हो, बोले मैं चंद्रमा में जाना चाहता हूँ। अभी जो जाते हैं, जैसे रॉकेट्स वगैरह जा रहे हैं, जो स्पुतनिक्स जा रहे हैं, तो बोले मैं भी जाना चाहता हूँ। हाँ, तो जा सकते हो। पहले 6 महीने आपकी तैयारियां होगी, पहले आपको प्रिपेयर करेंगे, सिमुलेशंस करेंगे, आपको ऐसे कपड़े पहनवाएंगे, आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे उस वाहन, उस ट्रांसबॉर्डर में जाने के लिए, तो जाके जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो, भले कितने भी पैसे हो आपके पास। तो इस हिसाब से भी अगर हम भगवान के लोग जाना चाहते हैं, अगर भगवान, तो हमको वो भक्ति करनी पड़ेगी। वहां पुण्य नहीं काम आएगा, पुण्य सिर्फ स्वर्ग लोक में जाने के लिए काम आता है, लेकिन भक्ति आपको भगवान तक ले जाती है। तो देवी देवता है ना, वो देवी देवता कौन है? आप, मैं और कोई भी जो इंसान है वो देवी देवता बन सकते हैं। ये तो जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स जो देश के होते हैं, वो तो पहले तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो पहले चाय वाले थे, नहीं तो अभी चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके अच्छे कर्म होंगे तो जाके वो पढ़े, ज्ञान था, बुद्धि थी, उनके में शक्ति थी, तो जाके बन गए। तो इसी प्रकार से अगर इंद्र भगवान बनने चाहते हो, ब्रह्म बनने चाहते हो, जो भी बनने चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये सब धरती के मटीरियल यानी भौतिक जो संसार है उसके दायरे के अंदर है। इट इज विद इन द भौतिक संसार, मटीरियल वर्ल्ड। ये जो भी प्लैनेट्स, हेवनली प्लैनेट्स हैं, हेलिश प्लैनेट्स हैं और धरती है, दे आर विद इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो हम उसी में ही नीचे ऊपर हो रहे हैं, कभी बीच में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर, कभी नीचे। इस अनगिनत जिंदगियां हमारी निकल चुकी हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों हमारी जिंदगियां निकल चुकी है। अभी कब तक एक समय तो आने चाहिए जब बोले हम अभी इस योयो से हम तंग आ गए, चक्कर आ रहा है, नीचे ऊपर में चक्कर आ रहा है, अभी नहीं जा, अभी नहीं करना है, अभी ये खेल बंद करना है। तो जाके फिर अब भगवान हमें बुद्धि देता है, ददामी बुद्धि योगम तम। कृष्णा बोलता है अच्छा अभी तूने विचार ऐसे अच्छे लाए अपने मन में, तो ये अच्छे विचार का भी मैं तुम्हारी साथ पे तेरा साथ दूंगा। तो वो हमें साथ देने लगते हैं, समझते हो? तो वो जब एक बार साथ देंगे, उसके साथ के बिना नहीं होगा। क्योंकि देखा ना आपने, जब हमने इच्छा की इस संसार में भोग लेने की, तो उन्होंने तैयारियां की, उन्होंने अपने नजर से अब माँ शक्ति को गर्भवती किया, उसके गर्भवती का कारण हम नीचे आए, हमें शरीर मिला, हमें अलग अलग रूप मिला। तो तैयारियां तो सब वही करते हैं, हम सिर्फ इच्छा करते हैं। तो हम अगर इच्छा करेंगे कि हमें भगवान के पास जाना है, तो वो तैयारियां फिर कर देंगे। अभी कैसा है, कौन सा वाहन से होगा, किस जरिए से होगा, कौन हमारे गुरु होंगे, कौन सा हमारा ये होगा, तो वो सब हमें वाहन तैयार करके देंगे। लेकिन इच्छा ये होनी चाहिए कि मुझे भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ है, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं फिर पापा आपके घर में आना चाहता हूँ। जब पापा से कोई बच्चा रूठ के जाता है, तो फिर आगे चल को पता चलता है मैंने गलती की, पापा से नहीं रूठना चाहिए था। तो पापा बोलते और कुछ बेटा नहीं है, तो आ जा, तू खाली
मन में दिल ख्वाहिश तो रख क्या आना चाहता है। अगर ख्वाहिश ही नहीं रखेगा तो बाप भी दरवाजा कैसे खुलेगा? ख्वाहिश तो होनी चाहिए ना, उसके मन में कुछ तो आने चाहिए कि मैं आ जाऊं फिर अपने पिताजी के यहाँ। तो यही हमारा एक रूल चल रहा है। हमारे परम पिता वो है, हाँ, हम बीज पिता बोलता है कृष्ण, हम बीज पिता, मैंने बीज दिया हुआ है, मेरे ही बीज हो तुम, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। तो तुम आप हमें कैसे स्वीकार करेंगे? स्वीकार जरूर करेंगे, भले किसी लेवल के भी हो हम, भले गिरे में से गिरे इंसान हो, गिरे में से गिरे जानवर कोई भी हो, अगर उसके मन में प्रकटित होता है, ये इच्छा जागृत होती है कि मैं भगवान के यहाँ जाना चाहता हूँ, उसकी फिर अपने ही घर जाना चाहता हूँ। एक्चुअली भगवान के यहाँ क्या, अपना ही घर है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तो फिर भगवान आपके लिए वो अरेंज करके देखेंगे आपको सिचुएशन। ओके, थैंक यू Thank you. Thank you for making such a question. थैंक यू। Okay, so any question more? यस प्रभु जी। हाँ बोलिए जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला हमारी डिजायर पे काफी कुछ निर्भर रहता है। इवन गोइंग बैक टू गॉड वी शुड वेरी हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर, और उतनी भक्ति हमने करनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आज किसी को स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि रियलाइज हुआ कि मुझे बैक टू गॉड जाना है, और वो भक्ति भी कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है अपना, तो उसके डिजायर के हिसाब से मे भी कुछ लेवल तक वो भक्ति के हिसाब से थोड़ा उनको आगे प्रमोशन मिलेगा, ये उनकी डिजायर थी। मान लो अभी क्या उस आदमी के को रुकावट आ सकती है दूसरे और किसी के डिजायर की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक लड़की ये डिजायर कर रही है कि मुझे इस इंसान से अगले जन्म में शादी करनी है, और मैं इसकी पत्नी बनना चाहती हूँ, इनके साथ रहना चाहती हूँ। अब ये दोनों की डिजायर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो ऐसे केस में उनकी डिजायर कैसी पूरी होगी, लड़की की डिजायर कैसी पूरी होगी, और इनकी डिजायर कैसी पूरी होगी जो बैक टू गॉड जाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? या इस जो कर्म की बात होती है ना, क्योंकि देखो एक बात मिलती है कर्म से, और दूसरी जो आपने एक फल है कर्म वाला फल, जो शादी करना चाहती है उस इंसान से अगले जन्म में, वो कर्म वाला फल है। पहले तो उसको वैसे कर्म करने पड़ेंगे, पहले जाके वो उसके साथ फिर अगर पैदा हो उसी शहर में, या जो पहले ऐसे धरती पे, या इट्स बिग कोइंसिडेंस, ये आसान नहीं है। जो हम कभी कभी बोलते हैं कि ये लड़की फिर पैदा हमारे घर में होके आएगी या पड़ोस में आएगी क्योंकि हम इसके जानते हैं, इज अ वेरी वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, वेरी रेयर कोइंसिडेंस फॉर इट टू हैपन। प्रभुपाद यूज्ड टू एक्सप्लेन लाइक सपोज समुद्र में छोटे छोटे रिंग्स आप डाल दो, और रिंग के अंदर से एक मेंढक आती है, अपना फ्रॉग डालती है, अपना सर निकालती है, और फिर अंदर पानी के चले जाती है, और फिर सर निकालने की कोशिश करती है, वही रिंग नहीं मिलेगा अभी उसको। ऐसे हजारों रिंग्स लगे पड़े हैं, वो पानी के करंट से घूमते रहते हैं, वही रिंग के अंदर नहीं आएंगे हम, अलग ही रिंग हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से उसी जगह पे उसी इंसान के सामने आना, ये कर्म की बात है एक तो, यानी, और बाकी जो दूसरा जो इंसान शख्स चाह रहा है वो भक्ति चाह रहा है, वो भगवान की भक्ति चाह रहा है उसे, so that bhakti is higher level than the karma. Okay, अभी आपकी जो इच्छा है वो भक्ति वाली है, उसकी जो इच्छा है वो कर्मिक है। Understand? So it becomes a bit complicated to match those two things. Of course, he will give a preference that you should be liberated. जैसे अभी एक अपने मुझे लगता है मैंने आपको एक कथा वो सुनाई हुई थी जो हरिदास ठाकुर की थी, जो इसके सामने एक प्रोस्टिट्यूट आ जाती है and she was sent by the king, right? अभी उसकी भी तो ख्वाहिश थी, चांद काजी की ख्वाहिश थी कि ये इंसान को मैं कैसे अपने वापस गिरा दूं भक्ति से, लेकिन भक्ति is sublime, is a topmost. When you're on the bhakti mark, then Krishna will hold on to you because you are not Krishna's hand. और जो कर्मिक बातें होती हैं, जो कर्मिक फल होने वाली बातें होती हैं, that is you are in the hand of the laws of karmas, which are handled by Durga Mata. And Durga Mata will never do anything which is hampering your progress towards Krishna. It will help you to go towards Krishna. So you will be always in a top position. Although it may look like conflicting for Krishna, you know, that अभी दोनों की बातें कैसे reconcile करें कि उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो और इनका भी ऐसा हो। जैसे कि एक छोटी सी एक जोक है ऐसा, एक बूढ़ी औरत ऐसी पूजा करती है भगवान को, तो उसने बोला था एक ही वर मांगना है, तो बोलते हैं हाँ मैं एक ही वर ये मांगती हूँ कि मेरी बड़ी उम्र में, बुढ़ापे में, मेरी 4वीं जनरेशन का बच्चा एक सोने के क्रेडल में पलते रहे और मैं उसके लिए उसको बिना चश्मे देख सकूं। अभी समझते हो अपने कितनी चीजें मांग ली उसने,
यानी 4th जनरेशन का बच्चा, यानी 4th ग्रैंडसन चाहिए उसको, यानी लंबी उम्र, सोने के क्रेडल में, यानी पैसे भी चाहिए। ऐसे हाँ वो बोलती है बिना चश्मे से मैं उसे देख भी सकूं, यानी शी वांट्स ऑल द सेंसेस टू आल्सो वर्क वेल, राइट। तो ये मांग करना, यानी ये जो मांग करते हैं वो मांगने में तो बहुत कुछ मांग कर सकते हैं, लेकिन हमें कर्म भी कैसे करने पड़ेंगे ना। तो इट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग कि आप वो कर्म कर पाए। नो डाउट कृष्णा मेक्स अरेंजमेंट्स। आप जो ख्वाहिश करते हो कहीं ना कहीं पे जाके आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। कौन सी ख्वाहिश हमारी होती है जो आज हम कर रहे हैं, हम सोचते होंगे कि हमने ये तो ख्वाहिश इस जिंदगी में कभी की नहीं थी, अभी मुझे क्यों मिल रहा है ये, या ये नुकसान मुझसे क्यों हो रहा है। देखे जैसे बीमारियां होती हैं, हम तो उसकी तो बीमारी तो कभी मांग के नहीं आती, हम मांगते हैं कि ये बीमारी आए हमारे पास, नहीं ऐसे ही आ जाती है, राइट। तो दीज आर थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर मेनी लाइव्स, past lives, which today maybe we are getting the fruits of those karmas or the desires. But the prevailing desire is to go back to Godhead. If you are desiring to go back to Godhead, then Krishna will help you directly. The Yoga Maya will help you. माया एक ही है, जैसे एक सिक्के के दो साइड्स होते हैं ना, हेड्स एंड टेल्स। तो माया जो योग है वो एक ही है, जो हेड्स हैं योग माया है, जो टेल्स है महामाया है। तो योग माया, जब महामाया को पता चलता है कि आप भगवान के रास्ते जाना चाहते हो, तो वही महामाया कन्वर्ट हो जाती है इनटू योग माया। तो योग आपको कराती है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का आपको एग्जांपल दिया, वही इलेक्ट्रिसिटी आप किसी काम के लिए भी वापर सकते हो ना। उसी समय भी है, जो भी डिजायर आप किसी काम के लिए भी वापर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं भगवान की तरफ जाऊं, तो आपको वो अरेंजमेंट, योग माया विल मेक दैट अरेंजमेंट फॉर यू। ठीक है। Yeah, Prabhu. Okay, so I think we'll stop now. I think it's already a bit late. It's 4 o'clock here, so must be a bit for you 7:30, I suppose. Hare Krishna. Thank you very much for joining. We will continue with this topic because और भी कुछ है information, because was limited. We'll continue next time. Okay. तो ये जो जहाँ तक हमने पढ़े हैं, फिर मैं उनके लिए थोड़ा, जैसे कि आपको याद रहे हमने क्या जो बोले हैं, तो आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म जो 9 में से जो थे उस 2 जन को 100% मार्क्स मिली थी। एंड दोस 100% मार्क्स आर वेरी गुड, बिकॉज जैसे बताया कि सवाल उसमें कोई जटिले थे। अभी नाम मैं बताऊंगा तो फिर बोलेंगे कि ये खाली ये बता देता हूँ दोनों बहनें हैं, तो उसमें से पता चल जाएगा आप कौन है जो ओके। भाई सब बेकार हो गए, भाई बेकार, 2 बहन है आपस में। एनीवे ये थोड़ा वो, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने होमवर्क किया होगा, उन्होंने किताब खोल के पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। हाँ, नहीं कोशिश कीजिए, देखो भले गलत हो, नो प्रॉब्लम, पर समय जो समय आधा घंटा 15 मिनट जो भी दे रहे हो, उस समय सवाल निकाल के पढ़ने की कोशिश करते हो। वो भी 20 मिनट आपने माया में से चुरा के भक्ति में लगा दिया, नहीं तो वो 20 मिनट क्या करोगे, 25 मिनट वो भी क्या करोगे, बैठे रहोगे या टीवी देखोगे या दुनियादारी की बातें करोगे। तो अगर उससे हटना है तो यही अच्छा काम है। सवाल हैं तो ढूंढोगे, टटोलोगे, दिमाग में सोचोगे, वीडियो चलाओगे, फिर से रिवाइंड करोगे, देखोगे, क्योंकि ये सवाल भी है जो उसके जवाब मैं बातों में दे ही रहा हूँ, वो जवाब है उस बातों में ही है, सिर्फ आपको फिर ढूंढने हैं वो सवाल ना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट टाइम हरे कृष्णा। Thank you so much. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Thank you. हरि बोल। Hari Bol. Hari Bol.